Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Now, this series of news started for your benefit so that you can save time on reading newspaper. Usually, some candidates are spending 4 hours, 5 hours on reading the newspaper, and still they are not able to get the right news which is important from examination point of view. So, if you use these three sources, you can save lot of time on reading newspaper. One is current affair PDF. Link is available in description box as well as my pinned comment. Subscribe this. You will save lot of time, 3-4 hours a day. Simply read from this PDF. You will be able to cover lot of news. Second, watch this daily video where I am covering selected news from the field of banking, financial and economics. For your convenience, I have created two playlists. One is the total playlist where all the videos about the current affairs on this field is available. Second, it is month-wise. For the month of July 2020 also, I have created a separate playlist. Both the links are available in description column. So now onwards, I will be making month-wise playlist so that you can choose the month and see the videos. Watch 5 to 10 videos. Third is banking, financial and economic awareness, basic knowledge. Because unless you will have the complete knowledge, you are not able to understand the news. 194 video playlist is available. Link is available in description column. Develop the habit of watching 5 to 10 videos daily. It will help you. So today news are: first, Yes Bank FPO opens today. Second, PNB proposes to accelerate self-service and focus on automation so that customers can do their transaction themselves and reliance on staff is reduced. Third, Mr. Raghu Raman, the former Governor Reserve Bank of India, says the NPA may rise unprecedentedly within 6 months. Fourth news is WPI contracted by 1.81% in the month of June. Contracted means it is lower than last year. That means people are not able to sell their goods and that's why prices have fallen. The fifth news is SBI may save rupees 1000 crore from work from anywhere concept. So they will be saving a lot of money. Then sixth news is SBI to focus on cost reduction and rationalization post COVID-19. Another news is SDFC to probe lending practices. Another news is Finance Ministry allows state for additional 2% borrowing. Additional news is NABARD announces refinance to the tune of 5,000 crore for watershed program. So these are some of the news, that is summary of the news relevant for today. So the purpose of these videos is to give you news in nutshell so that you are saving time. Half an hour reading of newspaper is enough. There is no need to spend 4 hours, 5 hours daily on newspaper. If you spend half an hour a day only for the purpose of improving your English, it is enough. Save this time and spend this time for other sources. So first thing I have told you, take a current affair PDF, good PDF. Link is available in description and comment column. Costing is very low. Say on 350 rupees you get one year plan. Now you are having all the material in one concise form. Simply use it. It will save lot of time. Instead of reading entire newspaper, most of news may not be relevant from the banking point of view and you are wasting your energies and time. Second, you can watch this daily videos where I am covering current affairs relating to banking, finance and economics. And third playlist is on banking, finance and economics. All the links are available in description box. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. ये हमने जो सीरीज शुरू की है रोज आपको न्यूज देने की, इसका मकसद ये कि आपका वक्त बचे, टू दी पॉइंट आपको न्यूज मिल जाए और जो आप न्यूज़पेपर रीडिंग में बहुत सारा वक्त लगा रहे हैं वो बच के आप किसी और एरिया में फोकस कर सकें. कई लोगों को मैंने देखा 4 घंटे 5 घंटे तक भी न्यूज़पेपर रीडिंग में लगाते हैं. उसकी जगह 3 चीज़ें आप रिप्लेस कर सकते हैं. पहला,
करंट अफेयर का पीडीएफ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में दिया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मंथली पीडीएफ आपको मिल गई, इसको पढ़ते जाइए। 4-5 दिन की न्यूज आप आधे घंटे 1 घंटे में पढ़ सकते हैं। कितने टाइम बच गया आपका। दूसरा है डेली क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसकी वीडियो अर्ली मॉर्निंग में डाल रहा हूं, इसको देखिए। प्रीवियस वीडियोस के लिए मैंने आपको 2 प्लेलिस्ट बना दी। एक तो उसके अंदर सारी करंट अफेयर की न्यूज की एक प्लेलिस्ट अलग से है। अब कुछ लोग कहते हैं सर बहुत सारी वीडियोस हो गई, हो सकता है हमें कुछ देखनी है कुछ नहीं देखनी, तो अब मैंने मंथ वाइज आपको प्लेलिस्ट अलग से दे दी है। तो जुलाई 2020 की आपको अलग प्लेलिस्ट बना दी है, आप जुलाई 2020 से देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा पुरानी वीडियोस मुझे नहीं देख रही, 5 से 10 वीडियो रोज देख लीजिए। फिर बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक अवेयरनेस की बेसिक टर्म्स की नॉलेज होना आपको निहायत जरूरी है, तभी ये न्यूज़ समझ आएगी। उसके लिए 194 वीडियोस की मेरी एक प्लेलिस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस लिंक, वो भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। 5 से 10 वीडियोस रोज देख लीजिए, कुछ ही दिनों में आपका सारा कवर हो जाएगा। ज़्यादा टाइम डिवोट कर सकते हैं, यहाँ दे दीजिए, क्योंकि जो टाइम आपने न्यूज़पेपर रीडिंग में लगाना था वो बचा के आप इससे अच्छा पहले बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक अवेयरनेस की सारी वीडियोस देख डालो, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारी न्यूज़ समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो आज की न्यूज़ है कि यस बैंक आपका जो एफपीओ है आज से ओपन हो रहा है। दूसरी न्यूज़ है पीएनबी ये प्रपोज कर रहा है कि जो सेल्फ सर्विस काउंटर्स हैं, जहां कस्टमर अपने आप डील करता है, उसको और एक्सलरेट किया जाए और फोकस किया जाए ऑटोमेशन पे अधिक से अधिक, ताकि कॉस्ट बचाई जा सके, स्टाफ के ऊपर डिपेंडेंस कम की जा सके। मिस्टर रघुराम राजन ने ये कहा है कि अगले 6 महीने में एनपीए बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। तो वो उन्होंने फोरवार्न कर रहा है कि अभी से इफेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए सभी बैंकों को, क्योंकि जो इकोनॉमी की कंडीशन है उसमें एनपीए राइज एबनॉर्मल हो सकता है। चौथी न्यूज़ है कि जो WPI इन्फ्लेशन है, होलसेल प्राइस इंडेक्स वाली इन्फ्लेशन है, वो 1.81% से घटी है। घटने का मतलब ये होता है कि इस बार जो प्राइसेस हैं होलसेल के अंदर वो लोअर हैं देन प्रीवियस ईयर। तो ये नेगेटिव साइन है इकोनॉमी का। दैट मीन जो मैन्युफैक्चरर है उसको एडिक्वेट प्राइस नहीं मिल रही है। इसके अलावा अगली न्यूज़ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1000 करोड़ रुपए तक बचा सकती है यदि वो वर्क फ्रॉम एनीवेयर कंसेप्ट को लागू करती है। तो उससे जो कॉस्ट कटिंग होगी स्टेट बैंक की वो इनॉर्मस है, 1000 करोड़ रुपए बचेंगे उसके। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये बताया कि वो कॉस्ट रिडक्शन और रैशनलाइजेशन इसके ऊपर फोकस करेगी पोस्ट कोविड में, क्योंकि कॉस्ट कटिंग पे जोर देगी। तो ये एक इशारा है कि बैंक इस फोर्सिंग की जो इनकम अपॉर्चुनिटीज हैं हो सकता है आने वाले टाइम में इतनी ज़्यादा अवेलेबल ना हो जितनी आज हैं, तो वो अब क्या करेगा, कॉस्ट कटिंग की तरफ ध्यान देगा ताकि प्रॉफिटेबल बना रहे। इसके अलावा HDFC कहता है कि हम जो अपनी लैंडिंग करने के तरीके हैं उसका प्रोब करेंगे। मीन्स जिस तरीके से वो आज फाइनेंस कर रहे हैं उस तरीके को वो प्रोब करेंगे, क्योंकि कुछ इरेगुलरिटी सामने आई हैं। तो HDFC इस तरफ ध्यान देगा कि इसमें क्या कमी है उसके लैंडिंग प्रोसेस में। इसके अलावा न्यूज़ है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने स्टेट्स को अलाउ कर दिया है कि वो 2% अधिक उधार ले सकती है, क्योंकि सभी गवर्नमेंट्स, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इस समय परेशान है लो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस से। कोविड के रहते हुए सारी एक्टिविटीज हो नहीं रही हैं, कुछ एक्टिविटीज चल रही हैं, कुछ बंद पड़ी हैं, तो उससे काफी जबरदस्त हिट लगा है जहां तक टैक्स कलेक्शन का सवाल है। अब खर्चे उतने ही हैं, आमदनी हो नहीं रही है, तो क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोरिंग बढ़ा दी है अपनी, लगभग 70-80 हजार करोड़ पर मंथ एक्स्ट्रा बोरो कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट इस समय। कुछ लॉन्ग टर्म कर रहा है, कुछ शॉर्ट टर्म कर रहा है। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट्स को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है कि वो 2% एडिशनल उधार ले सकते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को उधार लेने के लिए पहले सेंटर से परमिशन लेनी पड़ती है ताकि पूरे देश की जो इकोनॉमी है वो बैलेंस करके चला जा सके। इसके अलावा नाबार्ड ने अनाउंस किया है कि जो उसकी रीफाइनेंस फैसिलिटी है 5000 करोड़ की एडिशनल अवेलेबल हो जाएगी
यदि बैंक्स वाटरशेड प्रोग्राम के अंदर फाइनेंस करते हैं। तो ये एक तरह की लिक्विडिटी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंकों को उपलब्ध हो गई 5,000 करोड़ की। तो ये आज की विशेष खबरें थी। तो अगर इस तरह आप PDF ले लेते हैं जो मैंने आपको करंट अफेयर्स के लिए दी है, ये वीडियोस डेली देखते रहते हैं और प्रीवियस वीडियो 5-10 डेली देख लेते हैं, और बैंकिंग फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की वीडियोस जो 194 वीडियोस का सेट है उसको पूरा कवर कर लेते हैं, तो आप इस फील्ड में बहुत टाइम बचा सकते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग का, और वो टाइम डिवोट कर सकते हैं अदर एक्टिविटीज़ को। सो गॉड ब्लेस यू।